Good morning, students. Today we are going to discuss about dihybrid cross and inheritance of one gene or monohybrid cross. Okay, so before starting monohybrid cross, we will discuss about Sir Gregor John Mendel. Who is Gregor John Mendel? Gregor John Mendel is the first person who discovered the basic principles of heredity during mid-century. He is also called father of classical genetics. Okay, so G.J. Mendel was crowned by Nobel Prize after the discovery of his experiment, after the discovery of 65 years, or after the death of his 65 years, because the discovery of Mendel was hidden about 65 years of his death. Okay, so how he will be under limelight or other things we will discuss in this chapter. So let's start the monohybrid cross. Okay, he conducted an experiment in his garden pea plant and observed their pattern in inheritance from one generation to other generation to the next generation. Okay, so why he selected pea plant? Because pea plant is easy. The cross pollination इज़ ईजी इन पी प्लांट. ओके, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो पी प्लांट के जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो ईजिली क्रॉस पॉलिनेट हो सकते हैं, है ना. सेल्फ पॉलिनेशन भी ईजी है इसके अंदर. सो दैट एंड जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे. ही लिव्स इन ऑस्ट्रिया. सो ऑस्ट्रिया का वेदर सपोर्ट करता था पी प्लांट को. ओके, और देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स. देर आर 7 कैरेक्टर्स, 7 ट्रेड्स वॉज प्रेजेंट इन पी प्लांट. तो बहुत ईजिली उनको एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प हुआ. जो 7 कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से थे मेंडल पी प्लांट के, जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में. उन्होंने 7 कैरेक्टर्स में जो पहला कैरेक्टर था वो स्टेम हाइट था उनका. ठीक है, स्टेम हाइट में उन्होंने देखा कि 2 तरह के डिफरेंसेस हैं, टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट्स. सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर डॉर्फ. ओके, सेकेंड कैरेक्टर इज शीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड शीड. थर्ड इज शीड कलर, येलो एंड ग्रीन शीड. फोर्थ वन इज पॉड कलर. पॉड कलर जो हमारे पी प्लांट का पॉड होता है, जो मटर की फलियां होती है, दैट इज ग्रीन एंड येलो. ओके, ग्रीन इज डोमिनेंट and yellow is recessive. Then pod shape, inflated and constricted pod shape. Then flower color, violet flower and white flower. Violet flower is a dominant character and white flower is a recessive character. And at last, the 7th character is flower position. Flower position means the flower is axially situated or terminally situated. Okay, what is axially? Obviously the dominant character, and the terminal is recessive character. Okay, so how we decide, or how Mendel decide which one is the dominant character and which one is a recessive character, that will be defined in the monohybrid cross. Okay, according to monohybrid cross, Mendel decided which one is the dominant character and which one is a recessive character. Okay, let's start the monohybrid cross. Okay, in monohybrid cross, Mendel take only one character of pea plant. Okay, like आप टॉलनेस के स्टेम हाइट का कैरेक्टर ले सकते हो, फ्लावर कलर का कैरेक्टर ले सकते हो. यहाँ पे हमने जो फर्स्ट कैरेक्टर लिया है वो है स्टेम हाइट का. ओके, व्हेन मेंडल स्टार्टेड रिएक्टिंग true breeding tall plants means they have capital T gene. Okay, and true breeding dwarf plants, they have small t gene. Okay, if we talk about tall plants, they have capital T gene also. So we are talking about true breeding tall plant and true breeding dwarf plant. These are the parents of the monohybrid cross. Okay, then when we crossed, how we crossed? So let me show you how Mendel crossed the plants. Okay, the first picture shown, this picture shown in this picture we are getting this कि एक फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन को उन्होंने काट के हटा दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया. यू ऑलरेडी नो अबाउट इमैस्कुलेशन, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट इमैस्कुलेशन इन रिप्रोडक्शन चैप्टर. सो इमैस्कुलेट करके उन्होंने पॉलन ग्रेन को जो
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसको उन्होंने हटा दिया था, और उसके बाद किसी दूसरे फ्लावर यानी कि वाइट फ्लावर का अगर उन्होंने पॉलन ग्रेन हटाया तो पर्पल फ्लावर के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पॉलिनेट किया, फर्टिलाइज किया, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो हमारा फर्स्ट जनरेशन मिलता है टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का, वो सारे के सारे प्लांट उसमें डॉर्फ हैं, राइट, सॉरी टॉल हैं, राइट। तो सारे के सारे प्लांट अगर टॉल हैं तो वेयर द डॉर्फनेस कैरेक्टर गोन। ठीक है, इसको वापस से रीऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स को फिर से क्रॉस पॉलिनेट किया, सेल्फिंग की उसकी। ठीक है, एंड आफ्टर सेल्फिंग मेंडल ऑब्जर्व दैट कि जो F2 जनरेशन है, सेकेंड फीलियल जनरेशन है, F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स फीलियल जनरेशन, राइट। तो जो F2 जनरेशन है उसमें अगर हम 4 का रेशियो लें तो 3 पौधे जो थे, 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, और एक पौधा यानी एक प्लांट, अ सिंगल प्लांट इज डॉर्फ। ओके, तो जो द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, मीन्स 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. Okay, and the genotypic ratio of F2 generation monohybrid cross is 1:2:1. 1 जो प्लांट है उसका जो जेनेटिक कैरेक्टर है दैट इज कैपिटल T। सेकेंड प्लांट का 2 प्लांट्स हैं जिनका है कैपिटल T स्मॉल t, और एक प्लांट है जिसका है स्मॉल t स्मॉल t. ओके, सो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. This is this reaction containing one stem, one character, that is stem height. I will discuss with you another kind of monohybrid cross in which we are discussing about the second character, that is flower color. ओके, सो मेंडल ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही था कि नहीं, उन्होंने एक और हाइट कलर, एक और कैरेक्टर लिया और उन्होंने पर्पल फ्लावर, जिसको हम लोग वायलेट फ्लावर कहते हैं, और वाइट फ्लावर को फिर से क्रॉस कराया. प्लांट कंटेनिंग पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ प्लांट कंटेनिंग वाइट फ्लावर. when he crossed violet flower and white flower together, he observed that F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो है वो पर्पल फ्लावर कैरी कर रहे हैं, पर्पल फ्लावर कंटेन कर रहे हैं. एंड जब उन्होंने पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स को F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो हैं वो, उनमें 1/3 जो प्लांट है वो वाइट फ्लावर कंटेन कर रहे हैं, और 3/4 फ्लावर्स हैं, मतलब 3:1 के रेशियो में 3 फ्लावर्स पर्पल और 1 फ्लावर वाइट कलर का फ्लावर कंटेन कर रहा है प्लांट. ओके, इस तरह से उन्होंने 7 के 7 ट्रेट्स को आपस में क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद उन्होंने देखा कि जो 2 कैरेक्टर्स आप ले रहे हैं, जैसे स्टेम हाइट का या फ्लावर कलर का या पॉड शेप पॉड कलर का, उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में फुली अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपने कैरेक्टर को ठीक से शो, जो सेकेंड जनरेशन आता है, F2 जनरेशन आता है, उसमें कुछ प्रोपोर्शन में अपने कैरेक्टर को शो कर पाता है. ओके, सो ही विल डिसाइडेड कि जो F1 द कैरेक्टर्स विच वॉज शोन इन F1 जनरेशन दे आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, and which was hidden in F1 generation and show their effect in F2 generation, they are recessive characters. Okay, so Mendel from monohybrid cross, Mendel decided how we decide dominant characters and recessive characters. You all already I will told you कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखाई देंगे वो डोमिनेंट होंगे, और जो F2 में दिखाई देंगे कम प्रोपोर्शन में, कम रेशियो में, वो रेसेसिव कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, सो फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस Mendel give a law or conclude his experiment of monohybrid cross that कि एक उन्होंने लॉ दे दिया जिसको कहते हैं law of dominance. Law of dominance comes from monohybrid cross, and we will discuss about law of dominance in next video or next lecture.